Kumar, working as a professor in CSC department at ST Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. In online lecture series, today we will discuss the topic CPU scheduling. CPU scheduling is a process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold, means in waiting state, due to unavailability of any resources like input output. The basic concept of CPU scheduling is we use the maximum CPU utilization and to fulfill the condition of multi-programming. Multi-programming means more than program or more than job is available in RAM, and how they will execute and how they will transfer to the CPU for the execution. So the CPU make the a condition or process for the execution of process with the help of CPU scheduling. The aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast and fair. Whenever the CPU become idle, the operating system must select one of the process in the ready queue to be executed. Ready queue means RAM, because ready queue make in primary memory in RAM. The selection process is carried out by the short-term scheduler. As I told you in earlier lecture, what is the role of short-term scheduler? Basically, it is a system software program which select the process from the ready queue for the execution in CPU. The scheduler select from among the process in memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them. Basically, here is a simple diagram used for the execution of how the process execute in operating system. The maximum CPU utilization obtained with the multi-programming. मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही फुलफिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. इन नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रॉब्लम यही थी कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही तो दूसरी प्रोसेस हमारे पास नहीं, तो हम कैसे एग्जीक्यूट करें. उसको रिमूव करके ही मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया. द CPU इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ साइकिल ऑफ द CPU एग्जीक्यूशन एंड इनपुट आउटपुट बिट. बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है, जब लोड and store ready from the file, this is called the CPU burst time, and when the process is waiting for input output, that is called the input output burst. Suppose here process is doing some task, this is suppose incrementing the index to write the file, this is called the CPU burst. Here again, when the process requires some input output, this is called the input output burst time. So it is repeated for the execution of the process. When the process execute, when the process wait for input output, wait for other requirement. So this cycle is movement from one step to another few steps. The basic thing is scheduling criteria. कि scheduling parameters क्या क्या हैं जिनको यूज करके हम scheduling करते हैं. There are several different criteria to consider and trying to select the best scheduling algo for a particular situation and environment. Here we will discuss the 5 criteria for the scheduling of the process, जो डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस ये कम हो ये ज़्यादा हो तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट कैसा आएगा. तो हमें वन बाय वन स्टडी करेंगे. पहला है CPU यूटिलाइजेशन. एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर लेक्चर, आवर बेसिक मोटिव behind the multi-programming is keep the busy the CPU 100% by using the maximum utilization of CPU. So the system can be 0 to 100% PC. That's given the on the real-time system, CPUs should range from 40%
to 90% for heavy loaded. Second criteria is throughput. Throughput means number of process completed per unit of time. एक यूनिट ऑफ टाइम में कितनी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है एग्जीक्यूशन की, दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट. It may range from 10 seconds to 1 hour depending on the specific process. Throughput means एक पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कितना मिला. नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम required for a particular process to complete from the submission time to the completion time. This is called the turnaround time. Submission से लेके उसके फाइनल एग्जीक्यूशन तक का जो भी टाइम है, that is the called turnaround time. Next is waiting time. Waiting time, how much time process is spent in the ready queue waiting their turn to get the CPU. एक प्रोसेस रेडी क्यू में कितना टाइम वेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम. प्रोसेस अराइव होगी वेटिंग स्टेट में और वहाँ से सीपीयू तक जाने के लिए कितना वेट करेंगे, क्योंकि वहाँ मल्टीपल प्रोसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा है ऑलरेडी, तो वो कितना टाइम वेट करेगी, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम, कि उसको सीपीयू मिलेगा. रेस्पॉन्स टाइम, द टाइम टेकन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ए कमांड to the commence of response to that command. तो रेस्पॉन्स किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट आउटपुट कब मिला, दैट इज द कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम. कितनी देर वो रेस्पॉन्स देगा. तो ये हमारे क्या है, 5 क्राइटेरिया है सीपीयू शेड्यूलिंग के. सीपीयू नंबर 1 सीपीयू यूटिलाइजेशन, सेकंड वन थ्रूपुट, थर्ड वन टर्नअराउंड टाइम, फोर्थ वन वेटिंग टाइम, फिफ्थ वन इज रेस्पॉन्स टाइम. सो क्या होता है, इन जनरल वी वांट टू ऑप्टिमाइज द एवरेज वैल्यू ऑफ क्राइटेरिया. अब किसी भी शेड्यूलिंग के लिए सबसे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए एंड थ्रूपुट, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो और थ्रूपुट हो, मिनिमम क्या हो, बाकी चीज़ें हो, टर्नअराउंड टाइम कम हो, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए एंड रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए. बाकी सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट ये मैक्सिमम हो और बाकी जो क्राइटेरिया हो ये मिनिमम होना चाहिए. तब एक हमारी क्या होगी, बेस्ट एल्गो डिफाइन क्राइटेरिया आएगी कि हमारे दिस इज मतलब बेस्ट एल्गो. अब नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग. बेसिकली 2 कैटेगरी हमारी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. बट उसको स्टडी करने से पहले मैं 4 पॉइंट स्टडी यहाँ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या ये होंगे, कौन कौन सी कंडीशन. एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, वेटिंग में चली गई, वेटिंग से रनिंग हो रही है, तो क्या क्या वो कंडीशन हो सकती है. तो सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग फॉर सर्कमस्टेंसेस. नंबर 1 है व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट. सीपीयू में एग्जीक्यूट कर रही है, फिर से कहाँ चली गई, वेटिंग स्टेट में चली गई, कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के लिए. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. कोई इंटरप्ट आ गया, रनिंग में एग्जीक्यूशन था, वो कहाँ चली गई, रेडी स्टेट में चली गई, कोई इंटरप्ट अराइज होने की वजह से. थर्ड वन स्टेज क्या हो सकती है, व्हेन ए प्रोसेस स्विच फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, यानी कि वेटिंग स्टेट से रेडी में चला जाने का, इनपुट आउटपुट जो रिक्वायरमेंट थी प्रोसेस को, जो वेटिंग स्टेट में ही वो इसका कंप्लीशन हो गया और फिर कहाँ चली गई, वो रेडी स्टेट में चली गई. और फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट. एक ही हो सकता है, प्रोसेस टर्मिनेट होगी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. तो ये 4 एजम्पशन है किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए. अब क्या होगा इसमें हमारा, इन सर्कमस्टांसेस 1 and 4 देयर इज नो चॉइस in term of scheduling. इसमें नेक्स्ट क्या कंडीशन है, ए न्यू प्रोसेस इफ वन एग्जिस्ट इन रेडी क्यू मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर द एग्जीक्यूशन. देयर इज ए चॉइस हाउएवर इन सर्कमस्टांसेस 2 and 3. अब शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें, व्हेन शेड्यूलिंग टेक प्लेस अंडर द सर्कमस्टांसेस 1 and 4. 1 and 4 means when a process switches from the running state to the waiting state. Okay.
नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ, व्हेन द प्रोसेस टर्मिनेट, यानी कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कोई इंटरप्ट आ जाए या कोई आपका उसमें इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा, वो या तो वेटिंग में चली जाएगी या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। दो ही यहाँ कंडीशन है। तो पहली और फोर्थ किसके अंदर आ गई, नॉन प्रिम्प्टिव। नॉन प्रिम्पशन और अदरवाइज क्या होगी, प्रिम्प्टिव। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है एग्जैक्ट डेफिनेशन। दो कैटेगरी होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग की, कैटेगरी नंबर वन प्रिम्प्टिव नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग, सेकंड वन इज प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या है, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होगा एग्जीक्यूशन, वो सीपीयू को नहीं रिलीज करेगी, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। Definition under non-preemptive scheduling: once the CPU has been allocated to the process keeps the CPU until it releases the CPU either by the terminating or by switching the waiting state. कुछ भी हो जाए प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर रहेगी, वो CPU को रिलीज नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। Preemptive, in this type of scheduling, the tasks are usually assigned with a priority. At times, it is necessary to run a certain task that has a higher priority before another task, although it is running. Therefore, the running task is interrupted for some times and resumed later when the priority task has finished its execution. प्रिम्पशन में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, इज सम इंटरप्ट आई और सम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स, द करंट रनिंग प्रोसेस स्विच द सीपीयू, तो इसमें क्या होगा, सीपीयू प्रिम्प्ट कर जाएगा एक प्रोसेस से हायर प्रायोरिटी की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो ये दो डिफरेंस है। नॉन प्रिम्पशन में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर प्रायोरिटी हो, हाई हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जब तक प्रोसेस अनटिल एंड अनलेस कंप्लीट नहीं होगी एग्जीक्यूशन, वो अपना एग्जीक्यूशन करती रहेगी, दैट इज नॉन प्रिम्प्टिव। और नेक्स्ट प्रिम्पशन में ऐसा हो जाता है, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज कमिंग हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, द करंट सीपीयू स्विच फ्रॉम द करंट टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई, ये प्रिम्प्टिव है, नॉन प्रिम्प्टिव है, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे शेड्यूलिंग एल्गो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही हैं एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो, कि जो हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया हमने डिफाइन किए थे, टर्न वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, थ्रूपुट क्या होगा, ये क्या होगा, इनको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गो। सीपीयू शेड्यूलिंग डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग विच ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज टू बी एलोकेटेड फर्स्ट टू द सीपीयू। और यहाँ क्या है, देयर आर 4 कैटेगरी हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की। फर्स्ट वन इज एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग। सेकेंड वन इज एसजीएफ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, या इसको शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी हम बोलते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। थर्ड वन इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फोर्थ वन इज राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम और वेटिंग टाइम, ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो। सीपीयू शेड्यूलिंग deal with the problem of deciding which of the process in the ready queue to be allocated first to the CPU. फर्स्ट कैटेगरी है FCFS। अब इसमें हम बात करेंगे, ये एल्गो हम यूज़ करके इनका वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। FCFS एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द प्रोसेस विल कम फर्स्ट, ही विल एग्जीक्यूट he will execute first in the CPU. In this scheme the process which requires the CPU first, that is allocated to the CPU first.
The implementation of FCFS algo is easily managed with FIFO queue. When a process enters the ready queue, its PCB is linked onto the rear of the queue. अब यहाँ क्या है, इसका एक एग्जाम्पल दिया है FCFS पॉलिसी का. ये प्रोसेस है और ये इसका बस टाइम. बस टाइम मीन्स ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने के लिए इतना टाइम लेगी. दिस इज कॉल्ड बस टाइम. ये नंबर ऑफ प्रोसेस है. ये रेडी क्यू में हमारी प्रोसेस है सारी P1 P2 P3 और इसका बस टाइम 24 P1 का, P2 का 3 दिया है और P3 का 3 बस टाइम दिया. अब इनको सॉल्यूशन करने के लिए वी विल यूज द गैंट चार्ट. गैंट एक साइंटिस्ट थे. ही डेवलप दिस चार्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम. ये हमारा क्या है, उन्होंने ये टेक्निक दी डेवलप कैलकुलेट करने के लिए. अब इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जैसे बना रखा है यहाँ पे. और इसमें हम क्या करते हैं, सपोज एक प्रोसेस आई P1, नाम से जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जो आएगी पहले वो एग्जीक्यूट होगी. तो ये CPU को अलॉट कहाँ पर हुई, इसका बस टाइम 24 है तो 0 को आई. सबसे पहले तो 0 पे दी, CPU को 0 टाइम पे मिलेंगी और ये कहाँ तक चलेगी, 24 टाइम तक P1. क्योंकि जैसा नाम सही क्लियर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. कोई इंटरप्ट है कुछ है, इसका प्रीमिशन नहीं होगा क्योंकि नॉन प्रीमिटिव की कैटेगरी भी है, FCFS आती है. तो 24 तक चला. उसके बाद दूसरी प्रोसेस कौन सी आई, P2. इसका बस टाइम कितना है, 3. तो ये क्या होगा, 3 24 में ऐड हो जाएगा. कितना हो गया, 27. अब 27 पे P3 आई, कितना इसका बस टाइम है, 3. तो 27 प्लस 3 ये कितना हो गया, 30. ऐसी एक और प्रोसेस होती तो उसमें ऐड ऑन होता चला जाता और आगे चलता रहता अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, अकॉर्डिंग टू दिस एल्गो. तो ये हमारा गैंट चार्ट बन के तैयार हो गया. अब इसमें वी विल कैलकुलेट द वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम मतलब प्रोसेस रैम के अंदर आई रेडी क्यू में और उसने कितना वेट किया. तो P1 कितने पे आई थी, 0 पर, तो इसको तो कोई वेट नहीं करना पड़ा. तो P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा, 0. और 24 तक चली, CPU उसने 24 तक ऑक्यूपाई करके रखा और 24 पे जब ये हुई कंप्लीशन किसको मिला, P2 को. FCFS ऑर्डर के अकॉर्डिंग P2 को क्या हुआ, 24 पे सॉरी, ये हमारा क्या मिला, CPU को मिला. तो P2 का एवरेज टाइम वेटिंग टाइम कितना हुआ, 24. नेक्स्ट P3 प्रोसेस थी. P2 24 से 27 तक चली. अब P3 को CPU कहाँ मिलेगा, 27 पे. 27 टाइम्स तक CPU ने को P3 ने वेट किया और इसका कितना टाइम हुआ, P3 का वेटिंग टाइम 27. तो ये एक तरीका है इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का. और मैं एग्जाम्पल और भी दूंगा, इसमें अराइवल टाइम दे देते हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके एक अलग से एग्जाम्पल दूंगा फिर से. तो व्हाट विल हैपन हियर, सो देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम कि कितना एवरेज वेटिंग टाइम इन तीनों प्रोसेस का रहा CPU में वेट करने का. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका वेटिंग टाइम को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे तो उतना हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा. तो 0 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, 17 हमारा क्या आ गया, ये एवरेज वेटिंग टाइम आ गया FCFS के केस में. तो FCFS जैसे मैंने बताया नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या होगा. FCFS हमारा क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गो है. नॉन प्रिमिशन मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आए, कोई इंटरप्ट आए, जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगी जब तक CPU उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा. CPU का यहाँ प्रिमिशन नहीं होता. जैसा आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके हिसाब से हमारा क्या है, ये नॉन प्रिमिटन की कैटेगरी में आती है FCFS एल्गो. सो ये क्या था हमारा FCFS एल्गो और कैसे हमने कैलकुलेट किया, आई थिंक आप लोगों की समझ में भी आया होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.